हेलो। सो 2020 खत्म हो गया है एंड 2021 स्टार्ट हो गया है एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज फेल्ट ड्यूरिंग द 2020 एंड द थिंग्स दैट आई फील कि आई शुड बी टेलिंग यू एंड मे बी दिस इज समथिंग जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है या मे बी दिस इज समथिंग थ्रू विच यू कैन स्टार्ट समथिंग जो आपने शायद बहुत टाइम से सोच के रखा था बट स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, राइट? सो लेट मी टॉक अबाउट मी अ ईयर फ्रॉम हियर, लेट्स से इन 2019 जब न्यू ईयर मना रहे थे, हु वाज आई एंड how it all started and where am I in 2020. So it's not something where I'll say कि बहुत बड़ा rapid change हो गया है या कुछ चीज़ें हो गई हैं, but there are a lot of things that 2020 as a year has taught me. And when you talk about 2020, there are various things that probably I never thought would happen, or probably some things where I was in denial, maybe, or maybe some things which I never wanted to accept. But one thing that I always accepted and I will always accept throughout my life is God always has a plan. I mean, there are so many things that I had dreamed of when 2020 started, and probably I thought that those were the best things that would have ever happened in my life, and those would be the things where I think I would have loved to be there. But probably I did not know a lot of things, and probably where God had complete different plans. And that is where I want to tell you. Like, if you do not trust in God, or if you are, you can say, nahi, मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, या something like that, it's your choice. I'm not saying कि मेरी इस वीडियो को देख के you start feeling that. I'm just saying there is a greater power, and that greater power is working for your welfare somewhere at the background. And I've throughout my life felt that. So that is the first thing that I'll reiterate. God is there and He has a better plan for you always. So if something is not working out, do not cry over it. Do not sit and think, why me? There is something better coming. And that is what 2020 has all been about for me. And in this video, I'm not promoting anything. I'm not talking about any of the stuff that I usually do, nothing like that. It's just a talk that I always wanted to have. And I was thinking from at least a month, let's talk about it. And when this year started, I had complete different things. I had no idea what is going to happen, but something bad happened. Maybe when this year started, and then COVID happened, and I was like at the lowest of my life. And at that point of time, I was asking God why. So obviously, He cannot just come down to earth and just say, okay, this is the reason why I've done this for you. Maybe because you cannot see what is coming until and unless you realize कि कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए you need to have your eyes open. And शायद मेरी आंखें नहीं खुली हुई थी. So that is something that was there, but slowly and steadily, jab God took me there, and I was still standing. Probably that was the place from where I started to come up. I started some initiatives, they worked very well. I thought there are very less people around who would care to help, and no, that did not happen. There were so many people whom I never knew before 2020, and they are like so much like an integral part of my life now. And they've showed me that yes, if you are trying to do something, you will get a lot of good people around you who are going to support you, who are going to help you, and who are going to be there to help you out in the ways where you have never imagined. And this is nothing but God's way of telling you that He is building something better for you. And that is how I feel that yes, this is something which is good. So हुआ मेरे साथ भी, एंड मुझे नहीं पता था एट द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी क्या होने वाला है क्या नहीं, बट इट वाज अ लीप ऑफ फेथ दैट आई टुक, एंड वो चीज़ आगे बढ़ी.
And slowly and steadily things started to get on track. And एक चीज तो ये थी कि God always has a plan, so that is there. So हमेशा just if something is not working out, do not lose your momentum. Do not feel that okay, यार ये क्या हो गया मेरे साथ. Just feel that it is going to come back and it is going to give you more and more power. So just wait for that. But keep working for it. ये नहीं होना चाहिए कि अब मेरे संग बुरा हो गया है तो I should leave things and I should just become a bad person. And यहाँ पे एक बात है, I don't know if you guys are a fan of Zakir Khan or not, but I am. And Zakir Khan की एक you can say audio podcast है on गाना app उम्मीद करके. And उसका एक episode है where he talks about being a hero. And where he says that पता है हीरो और विलन कोई अलग इंसान नहीं होता है. हीरो और विलन की स्टोरी भी सेम होती है. वो एक पॉइंट आता है उसकी लाइफ में जहां पे उसको डिसाइड करना होता है कि वो हीरो बनना चाहता है या वो विलन बनना चाहता है. किसी की स्टोरी में ऐसा नहीं होता है कि विलन की स्टोरी अलग होती है और हीरो की स्टोरी अलग होती है. एंड देयर विल बी न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ दैट. ही गेव द एग्जांपल ऑफ बैटमैन. सो एंड जोकर. सो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं वेयर यू कैन सी. एंड ही सेड टर्निंग इनटू अ विलन it is very easy, but turning into someone who is a hero, it's very difficult. But no matter what you're becoming, you should never lose your humbleness. He said, जिन लोगों ने आज तुमको इग्नोर कर दिया, जिन लोगों ने आज तुमको ठुकरा दिया, उनके लिए अगर तुम लड़ना चाहते हो, गलत है. तुम सीधे उनसे आउट ऑफ रीच हो जाओ. अपने पे मेहनत करो, आगे बढ़ो, उस मुकाम पे पहुंचो जिस मुकाम पे शायद वो तुम्हें देख के हैरान हो जाए और फिर वो तुमसे जुड़ने की कोशिश करे. इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जब वो तुमसे जुड़ने की कोशिश करे, तब ये नहीं करना कि तुम इग्नोर करके चले जाओ उनको. तब ये करना कि उनसे ऐसे बात करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं था. जैसे कहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था जिससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा हो. और जब तुम उनसे ऐसे बात करोगे, शायद तब उनको ये रियलाइज होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा. तो गलत सही की बातें नहीं करता हूं मैं. आई एम जस्ट टेलिंग कि देयर इज अ पॉइंट इन एवरीवन्स लाइफ दैट इज अ टर्निंग पॉइंट. एंड मे बी योर लाइफ हैज सीन दैट, or maybe you might be experiencing it right now, or maybe you might experience it in the future. पर जब भी करना, कोशिश ये रखना कि we do not get into that villain attitude. We still remain to that hero attitude, and it is not at all easy at the start. बहुत सारे लोग आएंगे, मजाक बनाएंगे आपका, अरे यार क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, बेवकूफ है, 6 महीने करेगा, बंद कर देगा, अरे इसके जैसे तो बहुत सारे आए गए देखे हैं. ये सब चीजें स्टार्ट में बहुत होंगी. लेकिन when you will be going out and you will be doing something good, and it will, people around you will see it, maybe those who are not associated to you particularly, they will come ahead and they will support you. They will be there, they will be saying, and they will be, I don't know how, I have so many people coming to me and they say, they support me, I don't even know such some people. And there are so many places जहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, but I back out. मैं लड़ाइयों के लिए कभी ये नहीं करता हूँ कि I go ahead and I take revenge. नहीं. किसी ने मेरे संग कुछ बुरा किया है, I do not have to waste my time to understand या to plot something against him. नहीं. Why would I do that? I have so much positive things to do in my life. अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भाई बुरा किया है उसने तो बदला तो लेना चाहिए, वरना उसको समझ में कैसे आएगा. आई आस्क यू, उससे बदला लेके क्या आप वही इंसान नहीं बन गए? तो मत करिए ना, क्या जरूरत है. किसी ने आपके संग बुरा किया, उसको डरने दीजिए कि कहीं उसके संग वही बुरा ना हो जाए.
हम अपना आगे बढ़ते हैं ना, हम अपनी लाइफ का आगे सुनते हैं ना, हम अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं उस पे ध्यान लगाते हैं ना, उसके संग जो होगा वो होगा ना। लड़के क्या हो जाएगा? आप आगे बढ़ जाओगे उससे? नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, वो नहीं करना है। This is the second thing. And the third and the last thing that I wanted to say is अपने ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना। Do not ever try and put your upgradation, put your improvements and put your you can say किसी और के ऊपर ध्यान देने के चक्कर में अपने आप को इग्नोर कभी मत करना। If one thing is permanent, that is you. You are your greatest investment. अगर किसी और से प्यार है या अगर किसी और को बहुत मानते हैं या कुछ भी है, आप मानिए, इट इज़ वेरी गुड। It is very good to have someone in your life. It is very good to understand that someone is there who's taking care of you, but not at the cost of your self peace, not at the cost of your self improvement, and not at the cost of your self, you can say, क्या बोलते हैं, अपनी शांति को भंग कर दे कोई ऐसी चीज़, ऐसी ऐसी किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में मत रखिएगा। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब वो चाहे किसी भी फ़ील्ड में हो, चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, एक स्टैग्नेशन वाले फ़ेज़ में कभी मत आइए। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ स्टैग्नेशन वाला फ़ेज़ कम्फ़र्ट फ़ेज़ में कब बदल जाएगा एंड कब आपकी लाइफ़ आगे 10 साल प्लस हो जाएगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि मैंने तो लाइफ़ में कुछ किया ही नहीं यार पिछले 10 साल में। मैं तो बस एक ये नौकरी कर रहा था या मैं तो बस यार उसका ध्यान रखता रहा और सडनली मान लीजिए कल को वो चला गया, फिर आप क्या करेंगे? 5 साल, 6 साल, 10 साल की मेहनत या 10 साल का इन्वेस्टमेंट या 10 साल जिसका टाइम जो आपने किसी और को दे दिया था, वो टाइम आपके लिए वापस नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अपने लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने लिए टाइम नहीं है ना, तो लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। तो अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है और ये अपने लिए टाइम कहीं और से नहीं आएगा, ये अपने लिए टाइम आपको खुद निकालना पड़ेगा। ये उन्हीं के बीच में 24 घंटों के अंदर निकालना पड़ेगा, लेकिन निकालना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम में आपको रियलाइज़ होगा, जिसको हम मी टाइम भी बोलते हैं, उसी टाइम में आपको रियलाइज़ होगा, कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप टाइम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ पे आपको टाइम बचाना चाहिए। और उस टाइम को बचाने के बाद जब आप अपने लिए टाइम निकाल के बैठेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार, लाइफ़ में ये सब भी चीज़ें करनी है मुझे। रिमेंबर योर चाइल्डहुड, कभी अपना बचपन अपने माँ-बाप से पूछिएगा। वो आपको बताएँगे कि बेटा, आप तो ये पता नहीं क्या-क्या करने की बातें करते थे। एंड देन यू विल सडनली रियलाइज़ हाँ यार, मैं तो ये सब भी करना चाहता था। कर क्यों नहीं रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरा जो खुद का टाइम है वो मैं खुद के लिए निकाल ही नहीं रहा हूँ। घर के काम, ऑफ़िस, खाना, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ़, हस्बैंड, ये सारे रिश्ते निभाना, दोस्ती यारी निभाना और फिर रात को आके सो जाना। टाइम बचा ही कहाँ यार? टाइम बचा ही कहाँ? ये गलत हो रहा है। थोड़ा-सा तो समझना पड़ेगा। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अगर अपने आप को कुछ बनते हुए देखना है आगे जीवन में, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा-सा टाइम तो अपने लिए निकालना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बस। ये 3 चीज़ें अगर टू 2021 में या आप ध्यान रख लेते हैं, आई कैन गारंटी यू, you will be able to move ahead in your life more than you ever imagined, and obviously take the blessings of your parents always. That is one of the most important things to do in life. And believe me, पहले से सपोर्ट जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे ना, भगवान आपके रास्ते में हर वो चीज़ भेजता चला जाएगा, जो आपने सोची थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे संग हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ।
हर एक चीज़ जो मैंने सोची नहीं थी, अपने आप होती गई, अपने आप चीज़ें बनती गईं, अपने आप रास्ते खुलते गए। मैं बस मेहनत कर रहा था। मैं बस अपने आप के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था। बस, आई नो बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, बट ये चीज़ मुझे बतानी थी एंड ऑनेस्टली आपसे पूछूँगा, अगर आपको कुछ समझ में आया है या आपको लगा कि यार क्या बकवास कर रहा है, आई एम ऑलवेज़ ओपन टू सजेशंस, तो दीजिएगा। सुनते हैं, क्या गलत किया है, क्या गलत बोला है, आपके एक्सपीरियंसेस बताइएगा, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने पूरी दुनिया भर जहाँ के एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, क्योंकि मैं हूँ तो अभी एक 28 साल का लड़का ही। हो सकता है आपने मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी देखी हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट दिस इज़ हाउ आई वांट यू टू स्टार्ट एंड मूव अहेड इन दिस ईयर। अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों को भी शायद कुछ मोटिवेशन मिल पाए। बस इतनी सी आस्क है। थैंक यू।